Good morning, student. Welcome you all. So today we will continue the chapter number 3, that is The Little Girl, written by Catherine Mansfield. Alright, so before starting the chapter, let us discuss what we have read in our previous parts. So as you all know that the little girl name is Kezia and she is much afraid of her father, and one day when her grandmother suggested her to make a pin cushion for her father's birthday, she did exactly like that, but she didn't know that papers were his father's office paper, जिसे उसने क्या कर दिया था, tore कर दिया था for her surprise. Okay, but for this mistake her parents scolded her too much. उसके parents ने उसे बहुत डांटा, and her father hit her with a ruler on her pink soft palms. Alright, so now let us see what happened next in this story. Paragraph number 9. The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. So now we will talk about Kezia's neighbor, and the neighbor's name is McDonald's. McDonald's is a very beautiful name, and they lived next. He lived next to the door. Means जो भी केजिया थी, केजिया के जस्ट पास में वो रहते थे. So they had 5 children. उनके कितने children थे? 5 children थे उनके. Looking through a gap in the fence. Fence क्या होता है? जैसे आप घर के बाहर आप लगाते हैं ना कुछ इस तरह के, ये देखिए, ये रेलिंग्स वगैरह भी आप कह सकते हो, तो इनको फेंस कहते हैं. ऑलराइट, सो फेंस में बच्चे झांकते थे, एंड द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. सो जो लिटिल गर्ल थी, मीन्स जो केजिया थी, वो उनको फेंस में से देखती थी. पास में ही घर था, तो जो फेंस थी, जो बॉर्डर उनके घर के पास बनी थी, वहां से वो लिटिल गर्ल मीन्स केजिया उन्हें देखती थी. इन द इवनिंग टाइम पे दे ऑल वर प्लेइंग अ टैग गेम. अब टैग क्या होता है? टैग विच इज लाइक अ चिल्ड्रन गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, लाइक अ कैचिंग गेम. ठीक है, उसे हम टैग कहते हैं. तो दे वर प्लेइंग टैग इन द इवनिंग टाइम. सो द फादर विद द बेबी माउ on his shoulders, 2 little girls hanging on to his coat pocket ran round and round the flower bed, shaking with laughter. So वो सब क्या कर रहे थे? एक लिटिल बॉय था, एक बेबी था, एंड हिज नेम इज माओ. वो उनके शोल्डर पे, मतलब जो मैकडोनल्ड्स हैं, फादर मैकडोनल्ड, उनके शोल्डर पे बैठा था, और जो गर्ल्स थे, उन 2 गर्ल्स थी जो पॉकेट पकड़ के उनके खड़ी थी, और जो 2 बच्चे और थे वो भी साइड में वहाँ पे खड़े थे. एंड दे ऑल वर राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड हैंगिंग कर रहे थे उनके, और राउंड राउंड घूम रहे थे, और सब बहुत ज़्यादा लाफ्टर कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे. Once she saw the boys turn the house on him, and he tried to catch them laughing all the time. So एक जो बॉय था, अब वो क्या कर रहा था? टर्न्स द हॉर्स ऑन हिम. हॉर्स क्या होता है? लाइक अ वाटर पाइप. एक वाटर पाइप होता है, एंड इट्स लाइक ऐसे राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, कॉइल के जैसे घुमा हुआ होता है. जैसे उसने वो बॉय ने वो लिया और किसकी तरफ की? अपने फादर की तरफ. वो सब तब भी वो हंस रहे थे. एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम. और वो हमेशा कुछ ना कुछ हंसते रहते हैं. मतलब वो, अगर वो जो बच्चे ने वो हाउस फेंका था, तब भी वो क्या कर रहे थे? हंस रहे थे. राइट? Then it was she decided there were different shots of her father, but she thought that time कि अगर वो अपने फादर के साथ ऐसा करती तो it was like something कुछ अलग होता. ऐसे उसके फादर बिल्कुल नहीं करते उसके साथ, मे बी उसको डांट भी देते. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. तो suddenly क्या हुआ? One day a Kezia mother became ill. तो grandmother के साथ वो कहाँ चली गई? They went to the hospital. Okay, the little girl was left alone in the house with Alice the cook. अब देखो, we all know कि there was servant in their house. ऑलराइट, तो एक सर्वेंट थी उनके हाउस में, कुक थी,
and her name is Alice. तो वो एलिस के साथ घर पर अकेले रुकी थी. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. So it was okay in a daytime, but what about the night? In the night time, जो Alice थी उसको बेड पर सुलाकर जाती थी, but she suddenly grew afraid because she feels afraid in the night time, and she feels afraid to stay alone in dark. All right. What will I do if I have a nightmare? Then she asked, अगर nightmare means a bad dream. See this word, nightmare, a bad dream, बुरा सपना. She asked, I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. She said कि she always used to see that nightmare. ऑल राइट. और तब क्या करती थी, जो ग्रैनी मीन्स जो उसकी ग्रैंड मदर थी, उसको कहाँ लेके जाती थी? इन टू हर बेड. आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्पी. शी सेड कि मैं डार्क में नहीं रह सकती, अंधेरे में नहीं रह सकती, बिकॉज उसको बहुत हल्की हल्की आवाज़ें आती थी. ओके और वो बहुत डर जाते थे. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. Then she said, means Alice said to her, कि please, child, go to sleep. अपने socks भी आप उतार दीजिएगा, remove your socks and don't scream, because तुम्हारे जो father हैं, poor pa means your father, Kezia's father, वो क्या हो जाएंगे? उठ जाएंगे. बिकॉज वो ऑफिस से आते हैं, बहुत टायर्ड होते हैं और वो जल्दी सो जाते हैं. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम द बूचर. सो हियर द वर्ड बूचर. सो बूचर मीन्स अ पर्सन हु कट्स एनिमल्स और हु कट्स मीट्स. उसे क्या कहते हैं? बूचर कहते हैं. विद अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल. सो क्या होता है, उसे वापस से वो नाइटमेयर आता है, एंड अब उसके नाइटमेयर में क्या आता है? अ बूचर विद अ नाइफ एंड अ रोप. ऑलवेज बूचर इट्स नॉट लुकिंग वेरी नाइस, और ऐसा कुछ दिखता नहीं है, तो बहुत बुरा सा वो दिखता है यूजुअली, मुझे भी ऐसा ही लगता है. सो हु केम नियरर एंड नियरर. उसको नाइटमेयर क्या आता है, उसको बेडरूम क्या आता है कि वो उसके पास आ रहा होता है, एंड ही ऑलवेज स्माइलिंग, और ड्रेडफुल स्माइलिंग, बहुत कनिंग स्माइल होती है उसकी. वाइल शी कुड नॉट मूव, could only stand still crying out, grandma, grandma. अब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, और डर में she not able to come out of her room, and she just stands still and crying out, grandma and grandma. She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. What's the matter? He said. Then she saw her father who sitting beside her bed, एंड उनके हाथ में क्या थी? एक कैंडल थी. एंड ही सेड कि क्या हुआ? व्हाट्स द मैटर? तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या प्रॉब्लम हो? ओ अ बूचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी. वो बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, बट बहुत शॉर्ट में बीच में गैप लेके वो बोल रही थी. देन वो बोल रही थी, ओ हो बूचर है, नाइफ है, ग्रैनी, आई वांट ग्रैनी. ही ब्लू आउट द कैंडल. Then her father blew out the candle, bent down and caught up the child in his arm. तो उसने अपने आर्म्स में, मतलब उसके फादर ने उसको अपने आर्म्स में ले लिया. Carrying her along the passage to the big bedroom. और उसको पैसेज से होते हुए कहाँ पे ले गए? बेडरूम तक. A newspaper was on the bed. A half-smoked cigar was near his reading lamp. So एक न्यूज़पेपर जो थे वो उनके बेड पर थे. एक हाफ स्मोक सिगार जो भी थी वो भी उनके पास में, लैम्प जो रीडिंग लैम्प है उसके पास में रखी हुई थी. पुट अवे द पेपर. सो उन्होंने सारे पेपर्स वहाँ से हटा दिए. थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस. सिगार को भी कहाँ पे फेंक दिया? फायर प्लेस पे. देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड. सो हियर द टग्ड अप मीन्स कवर्ड अप नाइसली इन द बेड. सो बच्चे को वहाँ पे सुलाया मीन्स केविया को, उसको कवर्ड कर दिया विद बेडशीट और सम क्विल. So he lay down beside her. So her father also lay down beside her, मतलब उसके पास में ही सो गए. Half asleep still with the butcher's smile all about her it seemed.
She crept close to him, snugged. Snugged means होता है moved into a warm, comfortable position, close to another person. Okay, तो वो क्या होती है, उसको वापस से means उसको वापस से वो नाइटमेयर आता है, इट कम बैक. तो वो क्या करती है, वापस अपने फादर के पास चली जाती है, क्लोज चली जाती है, उनके आर्म्स में चली जाती है, टाइटली उनको क्लोज कर लेती है और एंड हर हैड अंडर हिज आर्म हेल्ड टाइटली इन हिज शर्ट. तो उनकी शर्ट, ऑब्वियसली उन्होंने शर्ट पहना होगा, उनकी शर्ट पे उनको टाइटली पकड़ लेती है और उनके आर्म्स में चली जाती है. यूजुअली जब बच्चे होते हैं, जब बहुत डर जाते हैं, तो ऐसा ही करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ. देन द डॉग डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल. Here, rub your feet against my leg and get them warm, said father. And her father said कि तुम डरो मत, तुम अपने फीट से मेरे फीट पे ऐसे रब करो, सो यू फील वार्म एंड उससे तुमको नींद भी आ जाएगी. Tried out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. So अब एक बहुत funny सी थिंग होती है उनके साथ कि वो लिटिल गर्ल थी, उसके साथ वो सो गए थे, बट ही वॉज वेरी टायर्ड. मीन्स केजिया's फादर वॉज वेरी टायर्ड, राइट. तो वो किसे, उस केजिया से पहले ही वो सो गए थे. तो इट वॉज क्वाइट फनी फॉर हर. पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल. देन शी रियलाइज नाउ कि पुअर फादर इट्स नॉट लाइक अ जायंट, इट्स नॉट सो बिग and with no one to look after him. And now there is no one to look after him because grandma and her mother both were in hospital. So कोई भी यहाँ पे नहीं है उसके साथ. So he was harder than grandmother. Obviously उनका जो बॉडी है वो क्या है, हार्डर है ग्रैंडमदर से. ग्रैंडमदर सॉफ्ट है बिकॉज मेल बॉडी है, ऑब्वियस है, इट्स क्वाइट हार्डर इफ हम कंपेयर करेंगे फीमेल बॉडी से. तो बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस. बट यहाँ पे वो बोलती है कि वो एक हार्डनेस तो थी, बॉडी बहुत हार्ड थी, बट इट वॉज वेरी नाइस. नाउ she saw the father loves and compassion, okay, towards her, and every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. So now she अंडरस्टैंड कि वो डेली मिस्टर मैकडोनल्ड्स की तरह उनके साथ मस्ती नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं. शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग्स. शी स्टूड सडनली एंड साइड. तो क्योंकि उन्होंने सारे उनके इम्पोर्टेंट पेपर्स को टॉर अप कर दिया था, तो ऑब्वियस था कि वो उनको डांटते. व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर. अनदर ड्रीम. तो नाउ हिज फादर सेड, डिड यू सी द अनदर नाइटमेयर? व्हाट्स द मैटर नाउ? So, said the little girl, my hat on your heart, I can hear it's going. So, little girl कहती है कि मेरा जो head है वो आपके हार्ट पर है और I can hear it's going. It's going means your heart beats. What a big heart you have got. कितना बड़ा हार्ट है आपका. ओके, वो बच्ची अब कहती है और उसमें से बहुत ज़्यादा वो क्या सुनती है, हार्ट बीट सुनती है जो बहुत फास्ट बीट कर रही होती है. फादर डियर, एंड में वो कहती है फादर डियर. सो with this, we come to an end of line-by-line explanation of this particular chapter, that is the little girl, and the title is very much appropriate because it's talk about the main character of the story, that is the little girl Kezia. Okay, so I hope you understand this chapter very well and you liked it very much. Okay, so take care. Thank you.